Good morning, dear student. Myself, Sunil Raghuvanshi from the Department of Electronics and Communication Engineering, SISTEC Ratibad, भोपाल. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यूनिट 1 में देखा था कुछ नेटवर्क्स के बारे में, नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी के बारे में, और ये जो सब्जेक्ट है आपके पास नेटवर्क एनालिसिस, इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपके पास पहली यूनिट में थे, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे a new topic that is called nothing but unit number 2. Unit 2. And according to the RGPV syllabus, what is the unit number 2? Unit number 2 is network graph theory. Network graph theory. It means we are analyze our network with the help of graph theory. It means network analyzed by graph theory, and it is also called a topology. Network topology. Clear point आपके पास? So in this unit we are analyze our network with the help of graph, or it means topology. So first of all, we understand what is the meaning of graph theory, and or maybe what is the meaning of topology. Clear point? So first is, what is network topology? Network topology, or maybe the graph theory. So in single word, if we are explain this term, we can say that the graphical representation of any network, it's called topology. Okay, so the graphical representation of any network, it's called network topology. Clear point यहाँ पर? Suppose that if we are represent our network with the help of graph like this, if we are having one inductor and one resistor, these are connected in parallel, and they are connected one voltage source here, plus minus, this is L, this is R, and current I. In this network, due to this voltage source, I current will be flow. Okay? So this is our network. Now if we are converted into this corresponding graph, so what happens? Simple. This network can be represented only the graphical points. Graphical representation means in the graph we are showing, suppose that this is graph, we are show that a line. This line signifies that the relation between x-axis data and y-axis data. How to relate this x-axis and y-axis? We are showing this single line by graph. Okay, so we understand here any network can be represented by its graph. So we can represent this network with its graph. How it is defined? Maybe so simple is, first of all we understand, we find out how many nodes are there. So suppose that this is node 1, and this is second node 2. So in this circuit there is a two node. First is draw the first node and draw the second node. Okay, now in between the node first and second there are so many branches are. So branches are represented by only single line. How to draw? We are explain this. Suppose that 1, second and third. Clear point? नोड 1 से 2 में गए, एक ब्रांच, 2, 3, तीनों ब्रांच को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया. So this is corresponding graph of this network or topology. Topology means the graphical representation of any complex network. Clear point? So there is a significance here of this unit, or maybe the advantage of this unit. We can analyze a complex network by simple graph theory.
It means we don't consider that what are element present in the branch. Maybe it's inductance, maybe it's resistance, maybe it's voltage. So if we are looking the graph of this network, there is a no need to understand कि there is an inductance in between this branch, in between nodes, there is resistance, there is a voltage source. We don't know. So irrespective of the pacing elements, we are studying only this graph. Clear point? So this is the biggest advantage. हमें एलिमेंट्स के बारे में जाने बिना ही उसकी स्टडी कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ थ्योरी. ओके, इट इज माय फर्स्ट पॉइंट. So what is the network theory, network graph theory, and what is the graph? Okay, so we understand how to draw a graph and why is the call is graph. Clear point? So first is how to draw a graph. ग्राफ का क्या मतलब होता है? Now, first we understand the basic terminology of this units. कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये इसका मीनिंग क्या है. सबसे पहला पॉइंट है वहां पर ग्राफ थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज ग्राफ. ग्राफ क्या है आपके पास? ग्राफ इज जस्ट द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नेटवर्क. ठीक है, बाय डिनोटिंग बाय ब्रांचेस एंड नोड्स. क्लियर पॉइंट? चलिए, so graph is nothing but all elements passive elements RLC is replaced by a single line and the voltage source. right, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके पास. any passive element, पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है. ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ इज नथिंग बट द कनेक्टिंग ब्रांच ऑफ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेटवर्क. किसी भी नेटवर्क को हम अगर फिजिकली कनेक्टेड शो करते हैं बाय द लाइनिंग से तो उसको क्या बोलते हैं? अपन ग्राफ बोलते हैं. तो ग्राफ में क्या होगा? हमारे नेटवर्क के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एलिमेंट्स है पेसिव एलिमेंट, तो ऑल पेसिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था. पेसिव एलिमेंट्स है हमारे पास RLC. इन RLC को जो हमारे पास है इनको हमें किससे डिनोटेट करना? ओनली एक सिंगल लाइन से. एंड all passive elements are replaced by a single line. ठीक है. and now second is active element. active element कौन कौन से हैं वहां पर? active elements में दो हैं आपके पास. फर्स्ट इज वोल्टेज सोर्स. अगर नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है हमारे पास तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इसको हम एक शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे. शॉर्ट सर्किट लाइन. ठीक है, शॉर्ट सर्किट लाइन. ओके, अगर हमारे पास नेटवर्क में करंट सोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या हमारे पास करंट सोर्स प्रेजेंट है, इसको रिप्लेस कर देंगे हम एक ओपन सर्किट सोर्स. ओपन सर्किट लाइन मतलब कि वो नेटवर्क में कनेक्टेड रहेगा ही. अगर ओपन रहेगा तो वो नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं रहेगा. क्लियर है ये पॉइंट आपको? तो ग्राफ क्या होता है आपके पास? ए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी नेटवर्क को. नेटवर्क में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट लाइन, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं. सपोज दैट फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एग्जांपल कंसीडर करता हूँ. ठीक है, चलिए मेरे पास जैसे कि एक नेटवर्क है. ये मैंने एक सिंपल सा नेटवर्क बनाया. यहाँ पर लिखा मैंने R1 R2 L, दिस इज वोल्टेज V. इससे करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या हो जाएगा? नथिंग बट क्या करना अपने को? हर एक पैसिव एलिमेंट को एक लाइन से रिप्रेजेंट करना है. नोड देखिए, नोड कितने? आइडेंटिफाई द फर्स्ट नोड, सेकंड एंड थर्ड. सेकंड एंड थर्ड नोड, तीन नोड है वहां पर. फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ग्राफ का, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो. ठीक है, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड. फर्स्ट और सेकंड नोड के बीच में क्या रिप्रेजेंटेड? R1. दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड नोड. थर्ड नोड means negative term, we are consider as a ground. So यहाँ पर क्या रहेगा? वन और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपके पास एक एलिमेंट है पैसिव एलिमेंट, तो इसको अपन एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं. फिर सेकंड से थर्ड के बीच में है एक लाइन, ये बना दी.
फिर फर्स्ट से थर्ड के बीच में भी एक लाइन है, ये हमने एक लाइन बना दी, और फिर फर्स्ट से थर्ड एक और लाइन है हमारे पास, ये हमने एक और लाइन। सो दिस इज ग्राफ ऑफ दिस नेटवर्क। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि ये ओरिएंटेड ग्राफ है या नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। ये नॉन ओरिएंटेड ग्राफ है। क्लियर। ओरिएंटेड ग्राफ क्या होगा आपके पास, ओरिएंटेड ग्राफ में आपको करंट की डायरेक्शन रहेगी ऑलवेज। दिस इज नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ ग्राफ, उसमें अपन देखेंगे ओरिएंटेड ग्राफ क्या होता है, नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है आपके पास कि ग्राफ क्या होता है, समझ में आ गया आपके पास। ठीक है, तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, एक नेटवर्क को उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में क्या करेंगे अपन, इन तीन पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर आपके यहाँ पैसिव एलिमेंट होंगे तो उनको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट सर्किट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स था 1 और 3 के बीच में, तो हमने क्या करा, उसको एक शॉर्ट सर्किट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज दैट इस नेटवर्क में एक करंट सोर्स होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं करंट सोर्स बना देता हूँ एक आई, दिस इज कॉल्ड करंट सोर्स कैपिटल आई। तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में ओपन सर्किट लाइन, ओपन सर्किट लाइन मतलब दिस इज ओपन, तो इसको अपने को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये नेटवर्क में कंसीडर, सॉरी ग्राफ थ्योरी में भी कंसीडर नहीं होगा, मतलब ये पिक्चर में ही नहीं आएगा। क्लियर पॉइंट। चलिए ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ थ्योरी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ग्राफ। कितने टाइप के आपके पास ग्राफ हैं। ओके, चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ ग्राफ। द नेक्स्ट टॉपिक अवर इन दिस यूनिट, टाइप ऑफ ग्राफ। टाइप ऑफ ग्राफ में आपके पास दो टाइप के ग्राफ हैं, प्लेनर ग्राफ और नॉन प्लेनर ग्राफ। ठीक है, प्लेनर ग्राफ का मतलब क्या होता है आपके पास, प्लेनर ग्राफ का मतलब होता है टू डायमेंशनल, प्लेन टू डायमेंशनल। ठीक है, मींस एक छोटे से प्लेन में आपके पास क्या है, दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम यहाँ पर देखेंगे प्लेन को, तो एक प्लेन में कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एक सिंपल प्लेन में दो एक लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेनर ग्राफ। नॉट इंटरसेक्ट टू और मोर ब्रांचेस इन ए ग्राफ, एक या एक से ज्यादा ब्रांच एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लेनर ग्राफ। यहाँ पर देखिए कोई भी ब्रांच आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक्सेप्ट नोड, नोड पर आके मिल रही है। नोड के आगे तो इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन नोड के पहले अगर आप देखें तो एक ब्रांच कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। वैसे ही नॉन प्लेनर ग्राफ का मतलब है कि यहाँ पर इंटरसेक्ट मिलेगा आपको बिटवीन द टू ब्रांचेस किसी भी लूप में। देखिए यहाँ पर देखिए 5 और 6 जो है ये क्या कर रहे हैं, आपके पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो दिस ग्राफ इज नथिंग बट नॉन प्लेनर ग्राफ। क्लियर पॉइंट। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, कनेक्टेड ग्राफ और नॉन कनेक्टेड ग्राफ के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट इज अगेन टाइप ऑफ, इसी में देखा है, ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ और नॉन कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ एंड नॉन कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ और नॉन कनेक्टेड ग्राफ। नॉन कनेक्टेड ग्राफ क्या होगा, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है और एक मैंने यहाँ पर इंडक्टेंस लिया है, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो इस ग्राफ को अपन बोलते हैं नॉन कनेक्टेड ग्राफ। ये टर्मिनल ए और बी के बीच में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इट मींस अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, मेरे पास एक ए टू बी, जैसे ये ए है, ये आपके पास हो गया बी, ए टू बी एक ब्रांच गई ये वाली, और एक ब्रांच हमारी ये गई। सो दिस इज नॉन कनेक्टेड ग्राफ। अगर हम एक और कंसीडर करें नेटवर्क, ठीक है, ये आपके पास अगर ब्रांचेस हैं, दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। ये यहाँ पर एक से ज्यादा लूप बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड। क्या बनेगा यहाँ पर कनेक्टेड में, देखिए ए और बी, ए और बी के बीच में क्या आ रहा है आपके पास, एक ये आ रहा है, एक ये गई सीधी सीधी बात, कितनी ना
दिस इज अगेन नॉन कनेक्टेड ग्राफ। लेकिन जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, मतलब ए टू बी यहाँ, ए टू बी यहाँ, क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर एक और ब्रांच बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर कनेक्टेड हो गया नोड। सो दिस इज कनेक्टेड ग्राफ, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर? अगर अभी हमने बनाया था इंडिविजुअली, अगर हम दोनों नेटवर्क को नॉन कनेक्टेड को ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? कनेक्टेड ग्राफ। ये ग्राफ इस ग्राफ से कनेक्टेड है। क्लियर पॉइंट? तो ये आपके पास ग्राफ, इसकी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं ग्राफ में, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। नोड मतलब जहाँ एक से ज्यादा ब्रांच आके मिलती है। ये अपने लास्ट यूनिट नंबर फर्स्ट में भी देखा था, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं अपन? ब्रांच। लाइन को अपन क्या बोलेंगे? ऑलवेज ब्रांच। या ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर है ये ब्रांचेस है, ठीक है। तो आगे जब अपन पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रांच कौन सी है, नोड कौन सी है। तो ये दिस इज कॉल्ड ग्राफ। चलिए इसी में अपन देखते हैं सब ग्राफ क्या होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? ग्राफ समझ में आ गया? ग्राफ में क्या क्या चीज होती है? लाइंस होती हैं, नोड होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, और वो आपस में कनेक्टेड होती है। कौन सी ब्रांच कहाँ पर कनेक्टेड है? प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, कनेक्टेड है, नॉन कनेक्टेड है, ठीक है। ये आप सब लोगों ने देखा है। चलिए अब अपन देखते हैं सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है ना? बी द नेक्स्ट टॉपिक इज सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है? ठीक है। सब ग्राफ जो होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ ग्राफ, ठीक है। सबसेट ऑफ ग्राफ है विच कंटेन ऑल नोड्स एंड ऑल ब्रांचेस। क्लियर? और एक भी ब्रांचेस हो सकती है, क्लोज लूप भी हो सकता है। अपने यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। इट इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ ग्राफ of graph, subset of branches and node in a given graph that contain branch and node less than the original branch। सब ग्राफ का क्या मतलब होता है? जो मेन ग्राफ है उसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट मैं एक ग्राफ बनाता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, इसमें एक नोड है, वहां पास एक, दो, तीन नोड हैं, और ब्रांचेस हैं एक, दो, तीन, चार, ठीक है। सो इन ए ग्राफ, ये आपके पास मेन ग्राफ है, दिस इज ग्राफ। इस ग्राफ में क्या है? नोड कितने हैं? नंबर ऑफ नोड इज नथिंग बट 3 नोड है। ब्रांच कितनी है? ब्रांच हमें मिली 4 ब्रांच मिली। अगर हम इसके सब ग्राफ को देखें, ठीक है, सब ग्राफ क्या हो सकते हैं? दिस इज द सबसेट ऑफ ग्राफ। इसका सबसेट क्या बन सकते हैं? देखिए, एक सबसेट आपके पास ये बन सकता है, ठीक है। एक आपके पास ये बन सकता है, एक आपके पास ये बन सकता है, ठीक है। So these are called subgraph। Okay, so this is nothing but this is the subset of this graph is called subgraph। Point is, क्या रिमेम्बर पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें आपको पॉइंट लिखना है कि जो नंबर ऑफ नोड हैं और नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो सब ग्राफ में कितनी आ रही हैं। नोड हो भी सकता कम हो या ज्यादा हो, ज्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि मेन ओरिजिनल ग्राफ ये है, ठीक है। तो आपको ये रखना है कि जो सब ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ नोड एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस आर लेस देन द ओरिजिनल ब्रांच, ठीक है। हमेशा एक कम रहेगा, या तो नोड कम हो सकता है या फिर ब्रांच कम हो सकती है। क्लियर पॉइंट? तो सब ग्राफ के जो नोड है, node and branch is less than original graph। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसेट में हो सकता है कि आपसे सिंगल लाइन आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर सिंगल लाइन बनाई है, दिस इज कॉल्ड सब ग्राफ। क्लियर है आपको पॉइंट? चलिए अपन देखते हैं, नेक्स्ट इज ट्री।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज ट्री। ट्री क्या होती है? ठीक है, ट्री इज नथिंग बट ट्री इज ए सबसेट ऑफ ग्राफ which contain all the nodes of given graph, but they cannot form a loop. क्लियर पॉइंट? चलिए इसको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ट्री क्या होती है? आपके पास ट्री में जो ग्राफ है उसके सारे नोड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ट्री वही कहलाएगी ग्राफ की, वो एक सब ग्राफ हो सकता है, लेकिन सब ग्राफ में सारे नोड्स कंसीडर होना चाहिए, और नोड को कंसीडर करते टाइम आपको किसी भी तरीके का लूप, मतलब क्लोज लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके पास। कैन नॉट बी एनी क्लोज लूप इन ए ट्री ऑफ ए ग्राफ। क्लियर? उसी ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? ट्री बोलेंगे। तो ट्री के मेन पॉइंट क्या आ गया आपके पास? इट इज ए सबसेट। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, दिस इज सबसेट ग्राफ या सब ग्राफ। ओके, सेकेंड पॉइंट, contain all nodes but not any closed loop. ओके, ट्री क्या हो सकती है? ट्री एक सब ग्राफ हो सकता है जिसमें सारे नोड्स कंसीडर हो, लेकिन किसी भी तरीके का क्लोज लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए। दिस सब ग्राफ इज कॉल्ड ट्री। क्लियर पॉइंट? चलिए अपन इसको देखते हैं। ट्री का मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं एक क्लोज, सबसे पहले ग्राफ लेता हूँ फिर उसकी ट्री बनाता हूँ। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें हमारे पास नोड 1 2 3 4, ब्रांच कितनी है? 1 2 3 4 5, and this is oriented, so we draw here current direction. Okay, this is called graph. फिर ये ग्राफ है आपके पास। आप ग्राफ में से आपको ट्री फाइंड आउट करना है, सो इसकी ट्री कितनी हो सकती है? हाउ मेनी ट्री? मेनी ट्री। एक और पॉइंट यहाँ पर जोड़ दे रहा हूं मैं, ट्री इज हैविंग मेनी ट्री। ग्राफ हैविंग मेनी ट्री। कितनी भी ट्री हो सकती हैं? एक से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। ग्राफ हैविंग मेनी ट्री। क्लियर पॉइंट? चलिए तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ट्री क्या होगी। ट्री क्या हो गया आपके पास कि 1 2 3 4 नोड होना कंपलसरी है, तो अपन 4 नोड बना लेते हैं। पहले ये नोड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 नोड हमने बनाए। 4 नोड बनाने से पहले इसमें क्लोज लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम ब्रांच कंसीडर करते हैं, एक ब्रांच 2 3 4 और इसको हटा देते हैं, तो आपके से क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्लोज लूप का फॉर्म नहीं होगा। देखो अगर हमने ये वाली ब्रांच हटा दी तो यहाँ पर एक क्लोज लूप फॉर्म हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? अगर हमने सिंगल ब्रांच ये हटाई तो भी यहाँ पर क्लोज लूप फॉर्म हो जाएगा। यहाँ हटाते हैं तो ये क्लोज लूप बन जाएगा, यहाँ हटाते हैं तो भी क्लोज। मतलब देयर आर मिनिमम 2 ब्रांचेस आर एस्केप एट सिंगल नोड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो इसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं और इसको रख लेते हैं। क्लियर पॉइंट? दिस इज अ टाइप ऑफ सबसेट ऑफ दिस ग्राफ एंड इट इज कॉल्ड ट्री। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सारे नोड कंसीडर हो रहे हैं, कोई भी क्लोज फॉर्म नहीं हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड ट्री। क्लियर पॉइंट? अब एक से ज्यादा भी ट्री हो सकती है। चलिए अपन इसको उल्टा ही बना सकते हैं। अब ब्रांचेस 1 और 4 को नेगलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच नेगलेक्ट हुई है? अभी यहाँ पर ब्रांच नेगलेक्ट हुई है हमारी 2 और 3। दिस इज इसके ब्रांचेस। ओके, तो करंट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारी ब्रांच हमने स्किप करी है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कोड ट्री। कोड ट्री में आपको समझाऊंगा अभी, पहले अपन ट्री समझ लेते हैं। ट्री एक और क्या बन सकती है आपके पास? इस तरीके की ट्री बन सकती है। ये बन गई आपके पास एक और ट्री, इसमें अपन ने क्या किया? ये ब्रांच और ये वाली ब्रांच स्किप कर दी, ठीक है। ये दो बनी है आपके पास, और भी बहुत सारी हैं, अपन ये भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये बना लीजिए आप,
ये ब्रांच आ गई, ठीक है। तो कौन कौन सी स्किप हुई है, ये स्किप हो गई हमारी और ये स्किप हो गई, ठीक है। तो नोट 1 2 3 4 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, 4 1 2, यहाँ कौन कौन सी आ गई आपके पास, 3 एंड 5, ये आपके पास इसके ब्रांचेस है। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए ट्री। ऐसे आप बहुत सारे ट्री बना सकते हैं। सो एक और पॉइंट आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्री आर अवेलेबल इन द ग्राफ, उसका एक फॉर्मूला है, अपन उसको फिर डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पर ट्री समझ में आए आपको, तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर आपको डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट डिस्कस किया ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, फिर मैंने इसमें डिस्कस किया सब ग्राफ, उसके बाद मैंने डिस्कस किया ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आपको समझना है ट्री क्या होती है, क्लियर पॉइंट। अब जो ट्री है आपके पास, जो ट्री ब्रांचेस होती हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड ए ट्विन्स। यहाँ पर ट्री ब्रांचेस कौन सी हैं, ये रेड वाले जो हैं ये ट्री ब्रांचेस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं ट्री ब्रांच। ट्री ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड tree branch is also called twins. TWIGS, twins. Okay, so tree branch is nothing but twins। और जो ट्री ब्रांच को हटा के अपने पास जो ब्रांचेस बचे हैं, दिस इज कॉल्ड इसकी ब्रांचेस या को ट्री, जिसको अपन बोलते हैं लिंक्स। क्या बोलेंगे, लिंक्स। दिस इज कॉल्ड को ट्री, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, इसमें इसी ग्राफ में बता देता हूँ। सो इस ट्री में अपने पास ब्रांचेस कौन सी हैं, 1 2 4, ठीक है। ब्रांच 1 2 4, दिस इज कॉल्ड एक ग्राफ ब्रांच, दिस इज कॉल्ड ट्विन्स या ट्री ब्रांचेस। इसको क्या बोलेंगे अपन, इनको बोलेंगे हम ट्री ब्रांच। और जो 5 और 3 है हमारे पास, branch 3 and 5 are called co-tree branches. This is also called a links, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, और जो इसकी ब्रांचेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को ट्री ब्रांच बोलते हैं या लिंक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ट्विन्स, क्लियर पॉइंट। चलिए अब अपन देखते हैं, नेक्स्ट इज इंसिडेंट मैट्रिक्स इन ए नेक्स्ट क्लास और मे बी द some after some time। नेक्स्ट टॉपिक इंसिडेंट मैट्रिक्स। इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ी होगी। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरे दैट कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ rows and number of column, and the order is, this is called a matrix। this is number of row and this is number of column, and the order is row by column, how many number of row and how many number of column, clear। so the incident matrix is nothing but it is a translation of a network into a algebraic form, ठीक है। so the incident matrix is nothing but it is a translate the graphical data of a network in algebraic form। so simple definition है आपके पास, इंसिडेंट मैट्रिक्स के आपके पास जो नेटवर्क है, ठीक है, उसका ग्राफिकली जो नेटवर्क हम बनाते हैं उसका ट्रांसलेट फॉर्म होता है, लेकिन इस मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है। क्लियर है पॉइंट।
तो यहाँ पर इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया था किरचॉफ जी ने। किरचॉफ लॉ अपन ने पढ़े थे, तो जो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इंसिडेंट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर पॉइंट। इसमें एक रिप्रेजेंट करेंगे अपन जो एलिमेंट्स हैं उनको अरे में जो नंबर ऑफ रहेंगे +1 -1 0, इससे अपन उसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ओरिएंटेड ग्राफ। ओरिएंटेड का मतलब है करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो चलिए अपन एक इंसिडेंट मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट इज लेट कंसीडर व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए मिनिमम ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। तो अगर ग्राफ में रो कॉलम तो दिए नहीं रहेंगे, तो ग्राफ में क्या मिलेगा हमें नोड्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, तो जो इंसिडेंट मैट्रिक्स सबसे पहला पॉइंट होता है ऑर्डर ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास, नथिंग बट नोड इनटू ब्रांच। ठीक है, एंड नंबर ऑफ नोड्स इन ए ग्राफ, number of nodes, and B is number of branches. ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। इट मींस अगर हम एक ग्राफ एक मैट्रिक्स बना रहे हैं तो एक रेक्टेंगुलर अरे है जिसमें नंबर ऑफ नोड्स लेंगे, नंबर ऑफ ब्रांच लेंगे। सो नंबर ऑफ नोड्स कहां पर रहेंगे, एरो में। ठीक है, तो यहां पर है आपके पास नोड, नोड यहां से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नोड्स। ठीक, ब्रांच का रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन कॉलम में। कॉलम ये है आपके पास, सॉरी इसको अपन एरो ऐसे बताएंगे, नंबर ऑफ नोड्स इस तरीके से हैं, रो वाइज है। यहाँ पर क्या आपके पास है ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ब्रांच, ब्रांचेस 1 2 3, और इनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम से, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है एलिमेंट लिखते हैं अपन A11 A12 A13, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। क्या लेते हैं अपन इसको मैट्रिक्स एलिमेंट। मैट्रिक्स एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसको अपन लिखते हैं I और J के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स एलिमेंट। क्लियर पॉइंट, I एंड J के फॉर्म में लिखते हैं। तो A J की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये -1 सॉरी +1 होगी जब करंट क्या करेगी, लीव करेगी किसी भी नोड से। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं करंट लीव। ठीक है, क्लियर पॉइंट। -1 कब होगी, जब करंट इंटर करेगी हमारे पास, करंट इंटर कर रही है किसी भी नोड पर। करंट लीव एट नोड, करंट इंटर एट नोड। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम 0 लेंगे का जब वो ब्रांच नोड से कनेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, ब्रांच नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड टू नोड। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंसिडेंट मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी आपके पास। इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होती है, एक ग्राफिकल ट्रांसलेशन है होता है आपके पास ग्राफ का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक अलजेब्रिक फॉर्म में, जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रो और कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर ग्राफ में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ नोड एंड ब्रांच के बीच में एक ग्राफिकल एक अलजेब्रिक फॉर्म बनाते हैं मैट्रिक्स का, उसको अपन इंसिडेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स की वैल्यू अपन कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास RLC नहीं है, क्या है सिंगल एक लाइन है, तो लाइन की डायरेक्शन, लाइन में क्या है करंट है, जैसे कि आपके पास ये दिया था, तो इसको मैं +1 लूं, -1 लूं, 0 लूं या कुछ और लूं, आप कुछ भी ले सकते हैं। प्लस और माइनस क्या बता रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं कि करंट अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। करंट बाहर जा रही है तो -1, और अगर अंदर आ रही है तो +1। और अगर ये ब्रांच किसी नोड में कनेक्टेड ही नहीं है तो हम क्या लेंगे 0। 0 का मतलब होता है देयर इज नथिंग। क्लियर पॉइंट। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए
नाउ द इंसिडेंट मैट्रिक्स, और एक अपन क्वेश्चन लिखते हैं, ये वाला मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है या एग्जांपल है क्वेश्चन। यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ आपको क्वेश्चन में बोला गया है राइट डाउन द ड्रॉन द corresponding graph and find the incident matrix। हमें क्या फाइंड करना है इसका, हमें एक तो ग्राफ फाइंड करना है और इंसिडेंट मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स, ये दो चीजें हमें फाइंड करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये एग्जांपल भी और न्यूमेरिकल भी समझ लीजिए आप। इसके करस्पॉन्डिंग में इसे ग्राफ बना सकता हूँ। क्लियर पॉइंट, ग्राफ कैसे बनाते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर देयर इन दिस ग्राफ। सबसे पहला नोड हमें मिला 1, और एक हमें मिला 2, और एक हमें मिला क्या 3। 3 यहाँ पर नोड्स हैं। सबसे पहले अपन 3 नोड बना लेते हैं। यहाँ देखिए 1, 2 और 1, ठीक है। इसके बेस में ब्रांच देखिए, एक ये ब्रांचेस कनेक्टेड है 1 से 2 के बीच में, तो 1 2 3, 1 से 2 के बीच में एक कनेक्टेड है, फिर 1 से 2 में एक और है, फिर बीच में एक और नोड यहाँ पर कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड फोर्थ नोड। तो इन दोनों के बीच में हमें एक नोड और बनाना होगा। वोल्टेज सोर्स कंसीडर है यहाँ पर, ये जा रहा है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, और एक ये कनेक्टेड। दिस इज नंबर ऑफ 4। क्लियर। अब मैं यहाँ पर इसको ओरिएंटेड कर दे रहा हूँ। ओरिएंटेड का मतलब क्या है, डायरेक्शन दे रहा हूँ, जो गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए यहाँ पर, हाँ डायरेक्शन देखिए यहाँ पर, डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये है कि यहाँ पर डायरेक्शन आएगी 1 to 2। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन क्या है, 4 से जा रही है, यहाँ से 4 से जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन आएगी ये, इसकी डायरेक्शन ये आएगी। इसमें देखिए यहाँ पर 3 से 4 के बीच में जा रहा है, पॉजिटिव है, तो ये आ रहा है 3 से 4 के बीच में। इसकी डायरेक्शन है 1 to 3, तो इसकी डायरेक्शन अपन लेंगे 1 to 3। यहाँ पर क्या दिया है 2 से 3, दिस इज 2 से 3। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेड ग्राफ। हमने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मेंशन कर दी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ग्राफ हम लोगों ने बना लिया, दिस इज ग्राफ, ठीक है। पहला आंसर आपका समझ में आ गया। आपको ग्राफ ड्रॉ करना था, आपने ग्राफ बना लिया। अब दूसरा क्या करना है, उसने बोला इंसिडेंट मैट्रिक्स। इंसिडेंट मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था, जो ग्राफ है उससे हम इसी ग्राफ का ट्रांसलेशन, ग्राफिक ट्रांसलेशन डेटा इन एल्जेब्रिक फॉर्म में बनाते हैं। तो एक मैट्रिक्स हमें बनाना है, और मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ ब्रांचेस फाइंड आउट करना है। सो इन ग्राफ क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ नोड्स कितना है, नंबर ऑफ नोड्स मिले आपको 4। नंबर ऑफ ब्रांच कितनी मिली, नंबर ऑफ ब्रांच देखते हैं अपन, ब्रांच देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, 6 ब्रांचेस है। सबसे पहली 1 2 3 2 3 4 5 and 6, दिस इज 6 ब्रांचेस। क्लियर पॉइंट। तो हमारे पास कितनी मिली, 6 ब्रांचेस मिली। अब अपन देखते हैं कंप्लीट नेटवर्क बना लेते हैं, सॉरी कंप्लीट इसका ग्राफ का बना रहा हूँ मैं, इंसिडेंट मैट्रिक्स बना रहा हूँ, उससे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं मैट्रिक्स बना दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास एक हम टेबल बना लेते हैं, एक टेबल अपन बना लेते हैं।
टेबल बनाया अपन ने, यहाँ पर लिखे नंबर ऑफ ब्रांचेस। आपको किसके और किस में बनाना है, नोड और ब्रांच के बीच में, तो यहाँ पर बनाओ ब्रांचेस बनाओ, ठीक है। ब्रांचेस के बाद अपन नोड्स भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर ब्रांचेस बनने, यहाँ पर जाएगा नोड्स, ठीक। चलिए, तो नोड्स कितने हैं आपके पास, 4 हैं, फर्स्ट 2 3 4। ब्रांच कितनी है आपके पास, ब्रांचेस हैं आपके पास 6 ब्रांच थी, ठीक है। यहाँ यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 and 6. These are 6 branches, and these are 4 columns, ठीक है। दिस इज टेबल। अब चलिए अपन देखते हैं। सो ऑर्डर देयर इज 4 by 6, node by branches, the order is 4 by 6. Now what is the element, एलिमेंट देखते हैं यहाँ पर अपन। एलिमेंट देखिए 1 1, मतलब नोड 1 से पहली ब्रांच कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है, लेकिन ये करंट यहाँ पर नोड 1 पे क्या जा रही है, करंट लीव कर रही है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर -1। सेकेंड ब्रांच जो है ये है यहाँ पर सेकेंड ब्रांच करंट नोड 1 पर आ रही है, तो नोड 1 पर आ रही है तो उसको क्या लेंगे अपन, सॉरी लीव कर रही थी तो +1 और आ रही है तो -1, ठीक है। 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है क्या नोड 1 से, नहीं है। 4 कनेक्टेड है, नहीं है। 5 कनेक्टेड है, डेफिनेटली कनेक्टेड है। ब्रांच फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है और करंट क्या हो रही है, जा रही है, जाने वाले करंट को अपन क्या लिखते हैं, +1। 6 नंबर ब्रांच हमारी कनेक्टेड नहीं है, क्लियर पॉइंट। चलिए 2 में देखिए यहाँ पर सेकेंड नोड पर कौन सी ब्रांच कनेक्टेड है, 1 3 and 4, उसके अलावा कोई कनेक्टेड ही नहीं है, तो 1 जो है वो क्या हो रही है, करंट आ रही है +1, सॉरी करंट आ रही है इसका मतलब है नेगेटिव, करंट जा रही है, कहाँ जा रही है, 4 से जा रही है पॉजिटिव, और करंट 3 से आ रही है, करंट 3 से भी आ रही है नेगेटिव, बाकी सब ब्रांचेस कनेक्टेड नहीं है, 0 0। नोड 3 पे कौन सी ब्रांचेस कनेक्टेड है, देखिए 2 करंट आ रही है, 4 और 5 और 6 जा रही है, तो जाने वाली करंट जो होती है वो पॉजिटिव हमने दिया है, तो जाने वाली करंट कौन सी है, 6 है, तो दिस इज पॉजिटिव। आने वाली करंट नेगेटिव होती है, दिस 2 करंट आर नेगेटिव एंड रेस्ट इज 0 0। नंबर 4 नंबर नोड पर देखिए कौन सी ब्रांच है, 2 और 3, 2 3 से जा रही है, ठीक है, 1 तो कनेक्टेड है ही नहीं, है ना, तो ये 0। 2 कौन सा है, 2 से जा रही है, जाने वाली करंट हम क्या लेते हैं प्लस, और 3 भी जा रही है आपके पास तो प्लस, और आ रही कौन सी करंट 6, आने वाली करंट क्या लेते हैं अपन माइनस, क्लियर पॉइंट। जब हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तो हम डोनेट करते हैं, मतलब जाने वाला, आने वाला मतलब हमने उधार लिया, आने वाले को अपन माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये करंट जा रही थी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स। ये टेबल बना लिया है, अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में बना सकते हैं कि इंसिडेंस मैट्रिक्स, कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स is 1 -1 0 0 1 0, ठीक है, -1 0 -1 +1 0 0, then 0 0 0 -1 -1 +1, so here 0 +1 +1 0 0 -1, and order is 4 by 6. So this is your second answer, incident matrix. Clear point. यहाँ पर conclusive point देखिए, the sum of each element in a column is equal to always 0. इंसिडेंट मैट्रिक्स सही है गलत है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक यहाँ पर कंक्लूसिव पॉइंट निकलता है, द सम ऑफ कॉलम एलिमेंट्स, द सम ऑफ
कॉलम एलिमेंट इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट याद रखना हमेशा। देखिए यहाँ पर सम करिए, इन सभी एलिमेंट्स का सम करेंगे तो क्या मिलेगा 0। यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर देखिए 0। इट मींस दिस इज करेक्ट इंसिडेंट मैट्रिक्स। क्लियर पॉइंट। तो एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बनाया था। अब इसी तरीके के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ।